Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is set chapter 1 exercise 1.1 from book New Additional Mathematics question number 8. Exercise 1.1a question number 8. List the element of the following sets. A part है A is equal to x such that x is a factor of 36, comma x belongs to n. B part B is equal to x such that x is an integer and 9 is less than 4x, 4x is less than and equal to 33 and x belongs to Z. C part is C set is equal to x such that x belongs to A and x not belongs to B. Question number 8. A set is equal to x such that x is a factor of 36, x belongs to n. n is a natural number. और x क्या है? फैक्टर ऑफ 36. तो अब हमने 36 के फैक्टर्स लिखने हैं. a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. फैक्टर्स ऑफ 36 लिख लिया. B set is equal to x such that x is an integer and 9 is less than 4x. x जो है वो इंटीजर है. इंटीजर्स मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और कौन से इंटीजर्स लेने हैं? जिनको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ग्रेटर देन 9 हो और लेस देन एंड इक्वल टू 33 हो. तो अब आप देखें इंटीजर्स का सेट किसके इक्वल होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. अब 1 से अगर x को अगर 1 लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 लेस देन 9. तो इसका मतलब है कि हम इंटीजर 1 नहीं ले सकते. अब हम 2 लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, 8 इज़ लेस देन 9. तो हम 2 इंटीजर भी नहीं ले सकते. 3 लेते हैं. अगर x 3 है, 4 3 ज़ा 12, 12 इज़ ग्रेटर देन 9. इट्स मीन 3 इंटीजर है. 4 लेते हैं. 16 33 से लेस है, 9 से ग्रेटर है, 4 इंटीजर भी है. 5 5 4 ज़ा 20 ग्रेटर देन 9 लेस देन 33. 6 लेते हैं. 4 6 ज़ा 24 ग्रेटर देन 9 लेस देन 33. 7 7 4 ज़ा 28 ग्रेटर देन 9 लेस देन 33. 8 4 ज़ा 32 ग्रेटर देन 9 लेस देन एंड इक्वल टू 33. अब अगर हम 9 लेते हैं तो 9 4 ज़ा 36 ग्रेटर देन 33 हो जाएगा. इसका मतलब है हमने x सिर्फ यही इंटीजर्स लेने हैं. इन इंटीजर्स को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 9 आता है और लेस देन एंड इक्वल टू 33 आता है. अब वो कहता है कि सेट C क्या है? x such that x belongs to A. यानी x इज़ a x A में प्रेजेंट है. x not belongs to B. x B में प्रेजेंट नहीं है. x वो एलिमेंट लेने हैं. अब C सेट हमारा क्या बनेगा? देखें 3 B में भी है, A में भी है, 3 इस C का एलिमेंट नहीं है. 1 and 2 is belongs to set A but not belongs to set B. तो 1 and 2 are the element of C. अब 4 is the element of A and B. 4 को रिजेक्ट नहीं लेंगे. 5 is the element of B but not the element of A. लेकिन हमने B के एलिमेंट तो लेने ही नहीं. 6 नहीं आएगा. 9 is the element of A but not the element of B. तो 9 हमारा C का एलिमेंट है. 12 belongs to A but not belongs to B. तो 12 is the element of C. 18 belongs to A but not belongs to B. 18 is the element of C. 36 belongs to A but not belongs to B. तो 36 is the element of C. ये हमारा आंसर हो गया. यहाँ 32 नहीं आएगा, 8 आएगा. 8. 1.1 question number 9. List the element of the set D. D is equal to x such that x is a multiple of 3 and x is less than 15.
and E is equal to x such that x is a multiple of 6 and x is less than 15. Find the set C is equal to x such that x belongs to D and x belongs to E. Exercise 1.1a, question number 9. D is equal to x such that x is a multiple of 3 and x is less than 15. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 3 से. 3, 6, 9, 12. x is less than 15 तो 15 हम 12 तक लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3. x is such that multiples of 6 and x is less than 15. तो 6 के मल्टीपल कौन से लिखेंगे? 6 and 12. 6 3 ज़ा 18 हो जाता है. 8 मल्टीपल ऑफ 18 इज ग्रेटर देन 5. अब कहते हैं फाइंड द सेट C x बिलोंग्स टू D एंड बिलोंग्स टू E. कि x D का भी बिलोंग करे और E से भी बिलोंग करे. C सेट हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 6. 6 बिलोंग्स टू D एंड 6 बिलोंग्स टू E and 12 belongs to D and 12 belongs to E. 6 and 12. Answer. Exercise 1.1a, question number 10. List the element of set A. A is equal to x such that x is an odd positive integer and 3x minus 2 is less than 17. List the element of set A. A is equal to x such that x is an odd positive integer and 3x minus 2 is less than 17. Odd positive integers कौन से होते हैं? Odd positive integers are 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. अब हमने x वो लेना है जिसको 3 से मल्टीप्लाई कर कर -2 करें तो लेस देन 17 आए. अब 1 से अगर हम x को 1 लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा लेस देन 17. तो 1 हमारे पास ऑड इंटीजर होगा. 3 लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7, 7 इज़ लेस देन 17 तो 3 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए. 5 लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 15 माइनस 2 इज़ 13, लेस देन 17 इट्स मीन 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए. 7 3s are 21 minus 2 is 19 तो ग्रेटर देन 17 है. इट्स मीन 7 ऑड इंटीजर हम नहीं लेंगे और 7 से आगे जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. तो ए के एलिमेंट क्या हो गए? 1, 3 एंड 5. और स्टूडेंट्स ये बाद में कोमा नहीं लगता इसलिए आपने ये नहीं लगाना. एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर ए. List the element of sets S and T. S is equal to x such that x square is less than 15, x belongs to Z positive, and T is equal to x such that x is a factor of 45, x belongs to Z positive. A part है find an element x such that x belongs to S and x not belongs to T. B part is find the set U is equal to x such that x belongs to S or x belongs to T. Exercise 1.1a, question number 11. S is equal to x such that x square is less than 15, x belongs to Z positive. अब Z क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है और पॉजिटिव इंटीजर्स Z किसके इक्वल होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब हमने वो वाले पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं अगर हम उनका स्क्वायर लें तो आंसर लेस देन 15 हो. तो s इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लें. 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो हमने लेस देन 15 लेने हैं. इट्स मीन x इज इक्वल टू 1, 2, 3. कौन से एलिमेंट्स लेंगे? 1, 2, 3. ये वो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर लें तो आंसर लेस देन 15 आता है. टी सेट है x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 45 एंड x बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव. t इज इक्वल टू 45 के फैक्टर्स लिख लें. 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45 are the factors of 45.
ए पार्ट क्या है, फाइंड एन एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू टी. तो टू इज द एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू एस बट नॉट बिलोंग्स टू टी. तो x is equal to 2. The element of x is 2. B part is find the set U x such that x belongs to S. यानी अब यहाँ पर देखिए और आया है कि x जो है S का भी एलिमेंट हो सकता है और x T का भी एलिमेंट हो सकता है. अब हमने कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना, हमने सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं. ठीक, और का मतलब है कि एस का हो टी में ना हो वो भी होना लिखना है, और टी में हो एस में ना हो तो वो भी लिखना है. और का मतलब ये होता है. और एंड का मतलब होता है कि एस में भी हो और टी में भी हो, सिर्फ वही लिखना है. ठीक है. नाउ वी राइट एस एलिमेंट ऑफ एस 1 2 3. उसके बाद 1 3 प्रेजेंट इन सेट. 1 3 को हम अगेन नहीं लिखेंगे. अगर सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो जाए तो वो फिर सेट नहीं रहता. 1 टाइम 1 3 लिख दिया. अब हम ये वाला 1 3 नहीं लिखेंगे. 5 9 15 45. 5 9 15 45. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अगर आपने कोई स्पेशल चैप्टर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या चैप्टर सॉल्व करवाना है किसी भी बुक का, तो आप बुक नेम और चैप्टर लिखकर भेज दें. मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी.